حبیب الرحمان صاحب صدر جلسہ، مسجد عائشہ کے امام و خطیب مولانا مجیب الرحمان صاحب، شہر حیدرآباد شہر نظام بدر کے کارپیٹر عبدالعزیز منا، شہر حیدرآباد سے تشریف لائے غلام یزدانی، علی پاشا قادری صاحب، سید عبدالقادر وحید پاشا قادری صاحب، شجاع الدین افتخاری صاحب، مرزا صفی اللہ بیگ صاحب، عبدالکریم صاحب، سمیر صاحب اور تمام دائز پہ تشریف فرما مفتی عبدالقادر صاحب، نجیب الرحمان صاحب اور حاضرین کرام، عزیز دوستوں و ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی عزت ماف میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بدر کی سرزمین پر تحفظ شہریت و حالات حاضرہ کے عنوان سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ بحثت مسلمان، بھارت کا مسلمان تحفظ شہریت کے لیے اپنی جان کی عظیم قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ موجودہ حکومت کو اور ان فرقہ پرست طاقتوں کو سوچنا چاہیے کہ بھارتی مسلمان کے اوپر جب ظلم زیادتی ہوتی ہے، ملک کی آزادی سے لے کے آج تک کم و بیش 50,000 سے زیادہ فسادات ہوئے ہیں۔ مسلمان صبر کا دامن تھامے ہوا ہے، بڑے بڑے فسادات ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے پھینکا گیا ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں ہندوستان اس ملک کی آزادی کے بعد پولیس ایکشن ہوتا ہے، 1.5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ ہماری ماں بہنوں نے اپنی عصمت کو بچانے کے لیے پوڑیوں کے اندر کود کے اپنی جانوں کی قربانی دی اور اپنی عصمت کو بچایا ہے۔ یہ وہی بدر کی سرزمین ہے جہاں غیور مسلم خواتین نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے اور معصوم نوجوانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا گیا ہے۔ مگر مسلمان صبر سے کام لیا ہے۔ اتنا کٹنے کے بعد، اتنا لٹنے کے بعد جاگیریں لوٹی گئی ہے، ہمارے سر سے تاج چلا گیا ہے۔ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، فٹ پاتھ پہ زندگی گزارے ہیں، بے یار و مددگار تھے، مگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے، اللہ سے امید لگائے بیٹھے تھے۔ اس وقت میں اللہ سے امید لگائے بیٹھے تھے جب مسلمان کمزور، لاچار، بے یار و مددگار تھا۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیلان پاک کے طفیل سے آج شہر حیدرآباد اور بدر کا ہندوستان کا مسلمان اور مضبوط اور طاقتور ہے۔ کسی کی مان و جانی کہ تحفظ شہریت میں یا مسلمانوں کی شہریت میں کوئی مداخلت کرے۔ ایسے ہزار طاقتیں مسلمانوں کی شہریت میں بات کرنے کی یا مداخلت، زیر و زبر ایک قانون ہے خداوندی، قرآن اس کا ضابط حیات ہے۔ ایک زیر یا ایک زبر میں کسی کی مانے جنی ایسے ہزار طاقتیں مل کے قرآن کے قانون کو مداخلت اور تبدیل نہیں کر سکتے۔ کوئی معمولی بات ہے کہ مسلمانوں کے شہریت میں کوئی تبدیلی کرے؟ آج اگر تم طاقت میں ہے، آج اگر تم اقتدار کے نشے میں ہیں، اگر فرقہ پرست طاقتیں وشوا ہندو پریشد یا بجرنگ دل یا RSS یا BJP کے خنڈے اگر بیٹھ کے قانون بنانے کی کوشش کریں گے اور ناکام کوشش کریں گے تو یاد رکھو
भारत का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत का मुसलमान हर फसादात को बर्दाश्त करा है। गुजरात को जलता हुआ देखा है, इन्हीं आंखों ने देखा है गुजरात को जलता हुआ। बाबरी मस्जिद दिन के उजाले में शहीद की गई। जो शहीद करने वाले थे आज बैठे हैं बड़े बड़े ओहदों पर। मुसलमान सब बर्दाश्त करेगा, मगर जहां शरीयत में तब्दीली की बात आएंगी तो आने वाला वक्त बताएगा कि उन जालिम ताकतों को सोचना चाहिए। हम किसी को छेड़ते आप छोड़ते भी नहीं हैं। आज मुझसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज हिंदुस्तान के हर शहर में उनका मकसद और यही मकसद है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों से खौफ को निकले। जब मुसलमानों के दिलों से खौफ को निकलेगा तो बेबाकी से मुकाबला करने के तैयार हो जाएंगे, कानून के दायरे में रहेंगे। हमारा झगड़ा किसी से नहीं है, हमारा झगड़ा किसी से नहीं है। हाँ, हम हमारी शरीयत की हिफाजत करेंगे। हम सारा हिंदुस्तान का मुसलमान शरीयत की हिफाजत करेगा। किसको इजाजत है कोई किसी के मजहब में दाखिल हो जाए? कोई और होंगे मजहब, हमारा मजहब नहीं है कोई। हमारा दीन इस्लाम है। मजहब जजीरों पे हुआ करते हैं, छोटे छोटे जजीरों पर छोटे छोटे मजहब हुआ करते हैं। सारे हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में दीन इस्लाम है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाता है। एक ही कुरान अगर हिंदुस्तान में देखेंगे तो वही कुरान है, तो अफ्रीका में चले जाओ तो वही कुरान है। सारी दुनिया में एक ही कुरान है। कोई तब्दीली की बात नहीं होना चाहिए। वफादारी की बात करते हैं, हर वक्त में वफादारी की बात करते हैं। अरे हम क्या वफादारी के सबूत दें? हिंदुस्तान की आजादी से लेकर जितने फसादात हुए हैं, हिंदुस्तान की आजादी से लेकर जितने बड़े बड़े लोगों के कत्ल हुए हैं, हिंदुस्तान की आजादी से लेकर जितने माँ बहनों की आसमत रेजी की गई है, हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक जो शहरों में फसादात हुए हैं, मसाजिदों को शहीद किया गया है, तो किसने करा है? कोई मुसलमानों ने फसादात किया है? नहीं मेरे भाई। आज वक्त का तकाजा है, मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। आज सारे हिंदुस्तान का मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के एक एक अल्फाज को, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के एक एक जुमले को लब्बैक कहने के लिए तैयार है। तो आप इधर के मुसलमानों, तुम भी मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो जाओ। तमाम मकादिब फिक्र की जिम्मेदारी है कि मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होके एक प्लेटफॉर्म पे आके तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए हम काम करें। आज जलसा मुनक़्क़िद किया गया है, ऐसे जलसे होना चाहिए। नौजवानों में शऊर बेदार होना चाहिए कि जो लोग कानून में मदाखलत की बात कर रहे हैं वो लोग सिर्फ इक़्तिदार के नशे में डूबे हुए हैं। आज याद रखिए मेरे भाई, हम इतना लूटे, इतना तबाह हुए, हमारे माँ बहनों की अज़मत रसी की गई, हमको काजर मूली की तरह काटा गया है। गुजरात के फसादात हमारे सामने हैं, आसाम के फसादात हमारे सामने हैं, भागलपुर के फसादात हमारे सामने हैं, मुजफ्फरनगर के फसादात हमारे सामने हैं, बम्बई के फसादात हमारे सामने हैं, तमाम फसादात हमारे सामने हैं। फिर भी हमारे ऊपर यही है कि हम वफादार नहीं हैं। तो मुझे एक शेर याद आता है कि ना हम मजबूर निकलेंगे, ना हम लाचार निकलेंगे, ना हम मजबूर निकलेंगे, ना हम लाचार निकलेंगे। ज़मीनें जब भी खोदोगे हम ही हर बार निकलेंगे। ज़मीनें जब भी खोदोगे हम ही हर बार निकलेंगे। वो खाकी चटिया, वो ज़ाफ़रानी रंग के चेहरे, वो खाकी चटिया, वो ज़ाफ़रानी रंग के चेहरे, इन्हें ढूंढो, इन्हीं में मुल्क के खतार निकलेंगे, इन्हीं में मुल्क के खतार निकलेंगे। आइए मेरे भाई, वक्त की कमी है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को और मजबूत करें। आज उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कमोबेश
70 के करीब MLA है, उनकी कारकर्दगी भी सबके सामने है। मुजफ्फरनगर का फसाद होता है, मेरी माँ बहनों की असमत रजी उस वक्त के सालिम गुंडे ढोल बजा बजा कर असमत रजी करे हैं, नाश्ते गाते हुए असमत रजी करे हैं, मगर कोई एक MLA में जरूरत नहीं है कि मौके वारदात पर पहुंचते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वो उस एरिया में असमत रजी हो रही है मुजफ्फरनगर में, मगर वो की असेंबली में 65 या 70 के करीब रुकन असेंबली मुसलमान रहते हैं, मगर किसी में जरूरत नहीं है कि वहां जाके एहतजाज करे। गुजरात चल रहा था, मेरी माँ बहनों की असमत रजी की जा रही थी, ऐसे बस्तियों को आग की शोलों में फेंक दिया जा रहा था, तिजारत को तबाह बर्बाद कर दिया जा रहा था, तो सारे गुजरात का मुसलमान, अहमदाबाद का मुसलमान, सारे हिंदुस्तान के लोगों की तरफ नजर उठाए देख रहा था। सेकुलर लीडर कहने वाले, अपने आप को मुसलमानों की वोट हासिल करके इख्तिदार हासिल करने वाले, वो लोग गुमनामी की वादियों में चले गए। एक हैदराबाद से क़यादत निकलती है, उस वक्त अली जनाब अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी अलैहिर्रहमान बहयात थे, सदर कुल मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रुकन असेंबली 4 मीनार थे। जब उनकी क़यादत में हैदराबाद से एक टीम जाती है, गुजरात चल रहा है, उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जाके वहां के मुसलमानों के दिलों से खौफ को निकालते हैं। कबो 20-25 दिन से ज्यादा वहां पर रहते हैं। असरा हॉस्पिटल से, ओवैसी हॉस्पिटल से, एक दवाखाने से एक टीम जाती है, 25 लाख से ज्यादा दवाएं जाते हैं। कहने का मकसद ये है, जहां जहां मुसलमानों के पर्सनल ज्यादती होती है तो सबसे पहले मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंच जाती है। मालिकों का बम धमाका क्यों ना हो, रमजान के फसादात क्यों ना हो। आसाम में रमजान में फसाद हुआ, आसाम के मुसलमानों को काटा गया, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ से इमदाद लेके जाते हैं। मुजफ्फरनगर को हैदराबाद से इमदाद जाती है, और हमको फिरका परस्त कहने वाले, आइए वक्त बहुत कम है, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुत्तहिद और मुनज़्ज़म रहिए और मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले जो काम हो रहा है उसमें साथ दीजिए। मैं तमाम अहलियान बिदर का, खास तौर से जितने लोग सर्दी में बैठे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी रात देर का बैठ के जलसों को समाप्त कर रहे हैं। तो एक अज़म के साथ उठिए कि तहफ़्फ़ुज़ शहरियत जो हमारा अहम मसला है, हम उसके लिए हम काम करेंगे। शहरियत में जो मदाखलत करेंगे हम उसके खिलाफ रहेंगे। आइए मैं एक शेर कहते हुए मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम तक पहुँचाता हूँ। किसी जालिम के डराने से कहाँ डरते हैं, किसी जालिम के डराने से कहाँ डरते हैं, हम तो जालिम की ही बस्ती में सफ़र करते हैं, हम तो जालिम की ही बस्ती में सफ़र करते हैं। खिलौनों की मेरे घर में कोई खदर नहीं, खिलौनों की मेरे घर में कोई खबर नहीं, मेरे बच्चे भी अब तलवार की जिद करते हैं। शुक्रिया खुदा।